Welcome back to the chase of 213 runs. Sultan Warriors need 213 runs to win this match and to lift this Bandipur Premier League cricket trophy. We are back with the chase of Sultan Warriors. They need 213 runs. The two opening batsmen, Owais Ahmed and Wasim Khashru on the crease now. Here is the first ball of the second innings. It's Javed Jadoo to the top of his bowling mark from the Rajasthan end. He's going to start the proceedings from the Rajasthan end. All is set now for the second innings. Wicketkeeper standing back. Here is Javed Jadoo. Comes in and bows. That one is outside the line of the leg stump. The ball is running down towards the boundary. It crosses the boundary ropes. 4 more runs. Wide fours. So 5 runs will be counted. It's 5 on the board for the loss of no wicket, chasing a target of 213 runs, which has been set by Sky Stars Budgam to achieve in the allotted quota of 20 overs. The two opening batsmen, Owais Ahmed and Wasim Khashru at the crease. Here is Javed Jadoo in to bowl. That one goes onto the back foot, plays it defensively all along the track towards the onside. It's fielded and there is no question of any run. Score stays at 5 for the loss of no wicket. All 5 runs in shape of wide. Here is Jadoo. Comes in, passes the umpire and bowls. That one played. It's in the air. The ball is running down towards the mid-off region. It's fielded. Both the batsmen go through for a single. 1 more run added up to the total score. It's 6 for the loss of no wicket, chasing a target of 213 runs in the allotted quota of 20 overs. Remember that toss was won by Sky Stars Budgam. Decided to bat first. Made 213 for the loss of 4 wickets in the allotted quota of 20 overs. Here is Jadoo. Left arm over the wicket. Bowls. That one played nicely towards the onside. It's fielded. And there is no question of any run. Score stays at 6 for the loss of no wicket. 6 for the loss of no wicket. Here is the next delivery. Jadoo in to bowl. Oh, that one played very nicely. The fielder dives. Couldn't stop that one. There's a bit of fumble from the fieldsman. The batsmen take 1. That's all they're going to get. A single run will be counted to the total score. It's 7 for the loss of no wicket. 7 for the loss of no wicket. Slowly and gradually the fielders moving towards their respective positions. Wicketkeeper close to the stump. Short third man. Back foot point. Cover. Short extra cover. And mid off on the offside. Here is next delivery from Jadoo. Into bowl. That one has been hit. What a magnificent looking stroke. Beats the fieldsman there and the ball crosses the boundary ropes. 4 runs. First boundary coming up. With that boundary, Wasim Khashru moves on to 4. And Owais Ahmed is not out on 1 run. They have to achieve the target of 213 runs. This is the first over of the second innings. And it's Jadoo to the top of his bowling mark. From the Rajasthan end, comes in, passes the umpire, comes out of his crease. Oh my God! Chance of a stump there. They are appealing. They are appealing. Not out, says the umpire. Oh, what a great delivery that one was. So he survives, no damage done, and that marks the end of over number first up to the completion of first over. It's 11 on the board for the loss of no wickets. It's over to Hakeem Bilal. एक चांस मिलता हुआ यहाँ पे अच्छा चांस मिला था वहाँ पे ओवैस अहमद को आउट करने का, लेकिन वो चांस गवाते हुए वहाँ पे टीम के कप्तान आसिफ रमजान विकेट कीपिंग अंजाम देते हुए पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 11 बिना किसी नुकसान के। जो शुरुआत चाहिए थी, अगर इस रन चेज को चेज करना, एक बड़ा स्कोर आपके सामने, एक बड़ा हदफ आपके सामने, और आज जिस तरह की टीम खिलाई गई है, अगर जावेद जड्डू की बात करो, समीर बेल की बात करो, तो कुछ अनुभव आज ऐड किया गया है गेंदबाजी में। स्काई स्टार बडगाम की जानिब से मैजिशियन अब यहाँ पे गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाए गए हैं। समीर बेल की मैं बात करूँ, एक अंडररेटेड खिलाड़ी है और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस रही है इस खिलाड़ी की रिसेंट टाइम्स में, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस रही है गेंदबाजी से। आज उनको ऐड किया गया, इससे पहले टीम में नजर नहीं आए थे, पहली बार यहाँ पे खेलने के लिए आए हैं और यहाँ पे देखने वाली बात होगी किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करते हैं स्टोव पे। 11 बिना किसी नुकसान के
इनका ये दूसरा ओवर शुरू होने जा रहा है। समीर बेल गेंदबाजी करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कड़ी है ओवैस अहमद और वसीम कासरू, क्योंकि आज आसिम बशीर टीम का हिस्सा है नहीं, तो आज जिम्मेदारी यहाँ पे पूरी तरह से वसीम कासरू के ऊपर और साथ साथ ओवैस अहमद के ऊपर। फिलहाल ओवैस सामना करेंगे, 2 गेंदों का सामना किया, 1 रन बनाकर नाबाद खेले, सामना करेंगे समीर बेल का। फिलहाल छोटे से रन के साथ इस ओवर की पहली गेंद, कैच ड्रॉप होता हुआ वहां पे। क्या कहना कि कैचेस विन मैचेस। पहली गेंद पे कैच छोड़ा बॉलर ने, अगर ये कैच लेने में कामयाब हो जाते तो यकीनी तौर पर सुल्तान वेरियर्स बारामूला की टीम दबाव में खेलती। इसी चीज की हम बात कर रहे हैं, वो मौके आपको लेने पड़ेंगे, हाफ चांसेस आपको लेने पड़ेंगे, बड़ा मुकाबला, बड़ी गेम, और यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस भी बड़ी देनी होगी। हवा में गेंद और गेंद जाएगी एक टप्पे के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इस गेंद को खेलना चाहते थे, यहाँ पे लेग साइड की ओर खेलना चाहते थे, बल्ले का बाहरी भाग लिया वहां पे और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 15 बिना किसी नुकसान के। चांसेस आपको लेने पड़ेंगे और खास तौर पे ओवैस अहमद और वसीम कासरू के चांसेस जो भी देंगे वो आपको लेने पड़ेंगे। काफी हर्ट कर सकते हैं जिस तरह के खिलाड़ी, जिस कैलिबर के बल्लेबाज है। फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद ड्राइव, क्या खूबसूरती के साथ खिलाड़ी वहां पे तैनात, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। आज जिस तरह से साकिब पांड्या ने इनिंग्स खेली है, एक इनिंग्स यहाँ पे सुल्तान की जाने से एक खिलाड़ी को खेलनी पड़ेगी अगर इस रन चेज को चेज करना है। 230 रन यहाँ पे आसानी के साथ चेज हुए, तो यहाँ पे चेज बिल्कुल ऑन है। गेंद जाएगी 6 रन के लिए। वसीम कासरू का एक ट्रेडमार्क स्ट्रोक है, यहाँ पे लपेटे में लेते हुए इस गेंद को और गेंद को डिस्पैच करते हुए मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर आते 10 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ इस छक्के की मदद से 21 बिना किसी नुकसान के, और ये ट्रेडमार्क स्ट्रोक है अगर वसीम का बात की जाए तो ये। और क्या खूबसूरती के साथ इस गेंद को लिफ्ट किया 6 रन के लिए। इस ओवर की अगली गेंद ड्रॉ, वहां पे तैनात कवर के क्षेत्र में, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। स्कोर 21 बिना किसी नुकसान के। इनिंग का दूसरा ओवर जारी, एक अच्छी शुरुआत यहाँ पे चाहिए होगी सुल्तान वेरियर्स बारामूला की टीम को अगर इस रन चेज को चेज करना है। बेल इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले, छोटे से रनअप के साथ फील्ड सजाते हुए वसीम कासरू के लिए। 7 गेंदों का सामना किया है कासरू ने, 11 रन बनाकर नाबाद खेले। एक खिलाड़ी यहाँ पे जो तैनात किए गए हैं लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, एक खिलाड़ी अब यहाँ पे, एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट के क्षेत्र में यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं फंसाने की। जो ट्रेडमार्क स्ट्रोक है वसीम कासरू का, वहां पे फंसते हैं, काफी बार फंसते हैं। फिलहाल इस ओवर की गेंद हवा में, गेंद 6 रन के लिए जाएगी। क्या ये कमाल का स्ट्रोक वसीम कासरू के बल्ले से, गेंद स्टेडियम से बाहर जाती हुई और ये दूसरा छक्का उनकी इनिंग्स का। स्कोर बढ़ता हुआ 27 बिना किसी नुकसान के। सुल्तान वेरियर्स बारामूला, द चेज इज ऑन। एब्सोल्युटली द चेज इज ऑन। यही होता है फिर जब आप कैच ही छोड़ते हैं, स्टंपिंग मिस करते हैं, तो उसका नतीजा यही होता है। पहले ओवर में भी मौका मिला था स्टंपिंग का, नहीं कर पाए। दूसरे ओवर में ये आसान सा कैच था लेकिन लपकने में नाकाम रहे, तो उसके बाद यही हाल होता है टीम्स का। 27 बिना किसी नुकसान के 2 ओवर की समाप्ति के बाद एक अच्छी शुरुआत यहाँ पे, जो शुरुआत चाहिए थी वो शुरुआत मिलती हुई, और इसीलिए हाई रेट करते हैं इस टॉप को। बाकी टॉपों से हम हाई रेट करते हैं, जो बाउंस है वो ट्रू है, आप अक्रॉस द लाइन खेल सकते हैं और उस पेस के साथ गेंद आती है, आप पेस पे भरोसा कर सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पे बल्लेबाज काफी पसंद करते हैं खेलना। और इन 2 स्ट्रोक्स में आपको अंदाजा हुआ होगा कि किस तरह की ये टॉप खेल रही है। फिलहाल 27 बिना किसी नुकसान के 2 ओवर की समाप्ति के बाद, 2 ओवर की समाप्ति के बाद उनका भी स्कोर था 27 रन बगैर किसी नुकसान के। तो देखते हैं जब खेल आगे बढ़ेगा तो हमें पता चलेगा क्या कुछ होगा, और मुझे लगता है जारहाना मूड में दिखाई दे रहे हैं इस वक्त सुल्तान वेरियर्स के बल्लेबाज। वसीम कासरू का ये स्वाभाविक खेल है, जिस तरह की वो बल्लेबाज हैं, वो इसी तरह की बल्लेबाजी करना जानते हैं, और इस तरह की बल्लेबाजी की आवश्यकता है, यहाँ पे जरूरत है यहाँ पे इस तरह की बल्लेबाजी की। फिलहाल जावेद जड्डू को गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया गया है। गेंद हवा में, गेंद गया अपने खिलाड़ी वहां पे, गेंद के पीछे आने की कोशिश करे जब तक इस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 28 बिना किसी नुकसान के। और ओवैस चौधरी का यहाँ पे जो रोल है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर एक एंड से वसीम कासरू यहाँ पे वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, दूसरे एंड से उनको यहाँ पे वो बिल्कुल एक एंड बचा के रखना होगा, जिस तरह से शिबी लेफ्टी ने आज वो एक एंड बचा के वो जिस तरह की बल्लेबाजी की है। फिलहाल गेंद हवा में, गेंद और गेंद जाएगी। क्या 6 रन के लिए इशारा आता हुआ कासरू स्पेशल यहाँ पे
एक और छक्का यहाँ पे कासरू के बल्ले से। इनिंग का ये तीसरा ओवर जारी और क्या कमाल की शुरुआत यहाँ पे मिली है। वसीम कासरू यहाँ पे दर्शाते हुए कि क्यों इतना हाई रेट किया जाता है। आज अपने पार्टनर को मिस कर रहे, लेकिन उस पार्टनर की यहाँ पे कमी होने नहीं देंगे। वसीम कासरू इस ओवर की अगली गेंद जावेद जड्डू के लिए, इस बार इनसाइड आउट, ये ट्रेडमार्क स्ट्रोक और गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई एक और छक्के के लिए। ये स्ट्रोक, इस स्ट्रोक की मैं अगर बात करूं, एक बल्लेबाज के लिए काफी मुश्किल होता है, लेकिन किस आसानी के साथ इस गेंद को लिफ्ट किया और खड़े खड़े इस गेंद को डिस्पैच करने में कामयाब होते हुए वसीम कासरू यहाँ पे आज अलग रंग में, अलग मूड, फायर एट द मोमेंट, अलग मूड में नजर आ रहे हैं। और ये शुरुआत चाहिए थी आज सुल्तान वॉरियर्स बारामूला, इस तरह की इनिंग्स चाहिए थी आज। फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद को हल्के हाथ से धकेला खिलाड़ी वहां पे, जब तक इस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, एक और रन जुटता हुआ स्कोर बोर्ड में, इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 41 बिना किसी नुकसान के। कमाल के स्ट्रोक्स, अगर वसीम कासरू के आप हर एक स्ट्रोक की बात की जाए, और 4 ओवर खेलते हैं और फील्ड के 4 ओवर खेलते हैं, और यही इस खिलाड़ी को स्पेशल बनाता है। 41 बिना किसी नुकसान के। जड्डू इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर अभी तक महंगे साबित होते हुए सामना करेंगे उनका अवैस चौधरी। गेंद की लाइन में आकर ड्राइव किया खिलाड़ी, वहां पे तैनात, बैल से वहां पे चूक होती हुई और गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई एक और चौके के लिए। एक और चौका यहाँ पे बल्लेबाज अवैस चौधरी के बल्ले से निकलता हुआ, इस बार टाइम किया गया, खिलाड़ी वहां पे समीर बैल मौजूद थे, उनसे फंबल होता हुआ एक और चौका यहाँ पे। इस चौके की मदद से 45 बोर्ड पे लग चुके बिना किसी नुकसान के। निकाय तीसरा ओवर जारी और इससे बेहतर शुरुआत आपको मिल नहीं सकती, इससे बेहतर शुरुआत आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते इस बड़ी चीज में। जावेद जड्डू यहाँ पे महंगे साबित होते हुए अभी तक 29 रन खर्च किया। आखिरी गेंद इस तीसरे ओवर की सामना करेंगे उनका अवैस चौधरी। इस ओवर की अगली गेंद हल्के हाथ से इस गेंद को धकेला, वापस फील्ड हुई, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। ओवर इख्तिताम होता हुआ 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 45 बिना किसी नुकसान के। 3 ओवर यहाँ पे इख्तिताम होते हुए, 3 ओवर यहाँ पे जिस तरह से खेली है सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की जानिब से, जिस तरह से 3 ओवर्स खेले गए, वो इंटेंट आपको नजर आएगा और वो अप्रोच आपको नजर आएगा यहाँ पे सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की जानिब से। और तारीफ करूंगा मैं यहाँ पे जो ग्राउंड क्रिएटर्स, पिच क्रिएटर्स है, मैं तारीफ करूंगा जिस तरह से ये टर्फ आज बनाई गई है, जिस तरह से टर्फ आज खिलाई गई है, सजा साहब तारीफ उनकी बनती है यहाँ पे। सही बात है। और जिस तरीके की विकेट बनाई है, यकीनी तौर पर मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं वो, और बहुत अच्छी विकेट बनाई है बैटिंग के लिए। हालांकि दोनों टीमों को बैटिंग भी करनी है और बॉलिंग भी करनी है। बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरह की क्रिकेट खेली जाती है, लोग पसंद करते हैं इस तरह की क्रिकेट, इस तरह की क्रिकेट देखना आजकल के लोग पसंद करते हैं। और ये टर्फ जिस तरह से खेल रही है अभी तक, इस टर्फ ने अभी तक जिस तरह से खेला है, डिसअपॉइंट हम हुए नहीं है। 213 रन यहाँ पे बने हैं और चीज लग रहा है ऑन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और फिलहाल समीर बैल एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पे पहले ओवर में 16 रन खर्च किए थे, एक बार फिर उन पे यहाँ पे भरोसा जताते हुए इस बार गेंद को ड्राइव किया खिलाड़ी, वहां पे तैनात, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। स्कोर 45 बिना किसी नुकसान के। हम मिस करें यहाँ पे प्रिंस आगा को मिस करें, क्योंकि यहाँ पे अभी तक हमारे कमेंट्री पैनल में है नहीं। अब ये गेंदा एक और स्लॉग गैप में गेंद, और गेंद जाएगी एक और चौके के लिए। वसीम कासरू के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका, हर एक गेंद पे प्रहार करते हुए और पूरा फायदा, भरपूर फायदा उठाते हुए फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस का वसीम कासरू जानते हैं उनके पास मौका आज हीरो बनने का। और यहाँ पे अभी तक जिस तरह की बल्लेबाजी की है और बिल्कुल डिजर्व करते हैं खिलाड़ी, अप्रिसिएशन ये डिजर्व करता है। 49 बिना किसी नुकसान के चौथे ओवर में, और आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की बल्लेबाजी हुई है। इस ओवर की अगली गेंद लेकर बैल चले, अभी तक 20 रन खर्च किया, अपने कोटे का दूसरा ओवर करे, गेंद जाएगी आधे दर्जन रन के लिए, जाइए और गेंद उठा के लाइए। वसीम कासरू आज मूड में, अपने मूड में नजर आते हुए, और 55 रन यहाँ पे बोर्ड पे लग चुके हैं। 21 गेंदों का खेल अभी तक हुआ है, 55 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। इनिंग का ये चौथा ओवर जारी और 26 रन। समीर बैल यहाँ पे आज अच्छे से स्वागत हुआ है, पहली बार यहाँ पे खेलने के लिए आए हैं और यहाँ पे अच्छे से उनका आज स्वागत किया गया है। और स्कोर बोर्ड पर जहां तक मेरी नजर जाती है, सिर्फ 14 गेंदों पर 40 रन बनाए हैं वसीम कासरू ने। बिल्कुल, आज काफी कुछ उन पे निर्भर था, आज जिम्मेदारी के साथ, काफी जिम्मेदारियों के साथ उनको भेजा गया और डिलीवर करते हुए आज अपनी टीम के लिए अभी तक अच्छे लगे हैं। 40 रन बनाकर नाबाद 14 गेंदों का सामना किया है। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार गेंद को खूबसूरती के साथ निकाल दिया और गेंद मिडा बोर्ड लाइन से बाहर जाती हुई एक और चौके के लिए।
एक और चौका यहाँ पे वसीम कासरू के बल्ले से और आतिशी पारी यहाँ पे जारी। वसीम कासरू की जानिब से 15 गेंदों का सामना किया है और 44 रन। ये खुशियां आप देख सकते हैं। ये पटाखा सर किया गया दरअसल, और मुझे इतना डर महसूस हुआ, क्या बताऊं आपको। एक और चौका फिलहाल 49 सपोर्ट यहाँ पे काफी ज्यादा सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम को मिलता हुआ, और इस सपोर्ट से मोटिवेट होती है टीम। और हम गुजारिश करेंगे कि कोई भी ग्राउंड में ना आए, वो इनडिसिप्लिन का यहाँ पे डिसिप्लिन का वो ख्याल रखा जाए और वो गेम को गेम की तरह लेना पड़ेगा। फिलहाल 59 बिना किसी नुकसान के 42 ओवर की अगली गेंद ड्राइव खूबसूरती के साथ, खिलाड़ी वहां पे तैनात, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। स्कोर 59 बिना किसी नुकसान के निकाय। चौथा ओवर पावर प्ले का ही चौथा ओवर जारी। काचरू 6 रन दूर अपने अर्धशतक से सामना करेंगे बाल्कीस अगली गेंद का। इस बार उड़ाने में असफल, लेकिन गेंद जाएगी। व्हेन यू स्लैश इट हार्ड, यहाँ पे हमेशा कहा जाता जब आप बल्ला चलाते, बल्ला उतनी तेजी के साथ चलाते हुए और 4 रन और बटोरते हुए गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई। समीर बेल का आप चेहरा देख सकते हैं, यहाँ पे 2 उसमें 34 रन खर्च किए हैं और समीर बेल यहाँ पे पूरी तरह से अब वो उनके चेहरे पे वो निराश नजर आ रहे और अब उनको अंदाजा हो रहा है यहाँ पे कि किस तरह की टर्फ खेल रही है। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे और आपके पास ज्यादा टाइम होता नहीं है। ये गेंद ऑप्शन से बाहर थी, इस गेंद को उड़ाने की कोशिश, गेंद उनके बल्ले के बाहरी भाग पे लगी थी, लेकिन बल्ला उतनी तेज चलाया था वहां पे, गेंद उनके बल्ले के बाहरी भाग पे लगी, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई 4 और रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ इस चौके की मदद से 63 बिना किसी नुकसान के 4 ओवर की समाप्ति के बाद का ये भरपूर फायदा उठाते हुए इस तरह की बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है। यहाँ पे आप अगर एक बड़ा स्कोर आपको चेज करना है, इस तरह की आपको बल्लेबाजी करनी होगी और वसीम कासरू से बेहतर ऑप्शन आपके पास है नहीं। और भरपूर साथ देते हुए ओयास चौधरी उनका 7 गेंदों का सामना किया है, 10 रन बनाकर नाबाद खेले, ज्यादा स्ट्राइक मिली नहीं है, लेकिन अभी तक वसीम कासरू की जानिब से जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है, 2 रन दूर अपने अर्धशतक से 17 गेंदों का सामना किया है, 48 रन बनाकर नाबाद खेले। टीम के कप्तान अब यहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए रूप मीर अब गेंदबाजी के मोर्चे पे यहाँ पे अब इंट्रोड्यूस किए गए। जानते हैं रूप मीर यहाँ पे विकेट अगर नहीं ली तो ये मुकाबला आपसे काफी दूर चला जाएगा। रूप सामना करेंगे उनका ओयास चौधरी। पहली गेंद की लाइन में आके इस गेंद को हल्के हाथ से ड्राइव किया, खिलाड़ी वहां पे तैनात, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। स्कोर 63 बिना किसी नुकसान के। इस इवेंट को अगर मैं बात करूं तो बांडीपोरा क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से ये स्पॉन्सर हुआ था, ये इनिशिएटिव लिया था, इस बांडीपोरा प्रीमियर लीग को ऑर्गेनाइज किया गया था क्रिकेट एसोसिएशन बांडीपोरा की जानिब से। एक अच्छा इवेंट है यहाँ पे बांडीपोरा में और हम उम्मीद करते हैं आगे आने वाले जो इवेंट्स है वो भी बेहतर तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाए और टाइम का खास तौर पे ख्याल रखा जाए। सही बात कह रहे हैं आप, क्योंकि जब आप डिसिप्लिन का मुजाहरा करेंगे तो गेम जो है वो काफी बेहतर होगी आपकी। फिलहाल गेंदबाज रोक मीर चले, गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला गया, स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पे तैनात, जब तक इस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 64 बिना किसी नुकसान के। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो कप्तान है आपके पहले सुपनर्स जो पहले ओवर्स में काफी महंगे साबित हुए, उनको कंटिन्यू रखा यहाँ पे और वो मैं कहूँगा थोड़ी सी गलती वहाँ पे, मिसकैलकुलेशन वहाँ पे थोड़ी सी वहाँ पे होती हुई आसिफ रमजान से, और काफी महंगे साबित होते हुए आप पहले 5 ओवर्स में अगर 70 रन खर्च करते हैं तो मुकाबले से आप दूर जाएंगे। गेंद धीमी गति की, हल्के हाथ से इस गेंद को मोड़ा, 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। हर 1 रन अप्रिशिएट करते हुए यहाँ पे तमाशाई की एक अच्छी खासी तादाद आज इस मुकाबले को देखने के लिए आई है बांडीपोरा के एसके स्टेडियम बांडीपोरा में, और अभी तक निराश नहीं किया है दोनों टीमों ने जिस तरह से खेल पेश किया है। परफॉर्मेंस दोनों टीमों की और अच्छा खेल पेश करते हुए। फिलहाल गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां पे गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे दूर जाती हुई गेंद 1 रन आसानी के साथ दूसरे रन के लिए मुड़े और कंप्लीट करते हुए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स वहां पे ओयास और वसीम कासरू के द्वारा। इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 67 बिना किसी नुकसान के था। 49 रन बनाकर नाबाद वसीम कासरू। 18 गेंदों का सामना किया, ओयास ने 13 रन बनाकर नाबाद खेले, 11 गेंदों का सामना किया और गेंद जाएगी आधे दर्जन रन के लिए। क्लास आपको नजर आएगी स्ट्रोक में, ओयास चौधरी के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का। स्कोर बढ़ता हुआ 73 बिना किसी नुकसान के। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम उस रंग में नजर आती हुई और
अभी तक जिस तरह से खेल पेश किया है और लग रहा है इस मुकाबले को आज यहाँ पे जीतने के लिए आए हैं। और इस मुकाबले को अभी तक जिस तरह से खेली है ये टीम, क्रेडिट जाता है सुल्तान वॉरियर्स, इस माइंडसेट को क्रेडिट जाता है, इस अप्रोच को क्रेडिट जाता है। शुक्रिया बिलाल। तो 5 ओवर्स की समाप्ति के बाद मजमू स्कोर 73 रन बगैर किसी नुकसान के। बहुत अच्छा आगाज फराहम किया है वसीम काचुर और उवैस अहमद ने। जबरदस्त इनिंग्स का आगाज किया है। हालांकि काफी खराब गेंदें उन्हें देखने को मिली और खराब गेंदों का सामना किया, जिस पर काफी ज्यादा चौके और छक्के लगाने में वो अभी तक कामयाब हुए। मजमू स्कोर 73 रन बगैर किसी नुकसान के। उवैस अहमद 19 रन पर बैटिंग कर रहे हैं, जबकि वसीम काचुर ने 49 रन बना रखे हैं। इनिंग्स का छठवां ओवर शुरू होने जा रहा है और गेंदबाजी के लिए आए हैं नए बॉलर और बेल को हटा दिया गया है और अब नए बॉलर को अटैक पे लाया गया है। आकिब गेंद करेंगे कोट रोडेन की जानिब से। 73 मजमू स्कोर बगैर किसी नुकसान के। 213 रन का पीछा करते हुए इस वक्त सुल्तान वेरियर्स बारामूला की टीम। हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स हैं, आपका इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात को शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी लाइव नशरियात पहुंचे। छठे ओवर की पहली गेंद लेकर आए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद को उठा दिया है, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रोकने में कामयाब हुए। वहां पर फील्डर इस दौरान एक ही रन बन पाएगा। 1 रन इत्मीनान के साथ पूरा किया। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजमू स्कोर 74 रन बगैर किसी नुकसान के। 213 रन का पीछा करते हुए सुल्तान वेरियर्स बारामूला की टीम बांडीपुर के एसके स्टेडियम में बांडीपुर प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में। आकिब गेंदबाजी कर रहे हैं कोट रोड एंड से। उनका सामना करेंगे दाएं हाथ से खेलने वाले उवैस अहमद, जिन्होंने अभी तक 19 रन बना रखे हैं। 50 रन मुकम्मल किए वसीम काचरू ने 19 गेंदों का सामना करते हुए। आकिब चले, अंपायर को क्रॉस किया, विकेट पर पहुंचे, गेंद की, इस गेंद को उठा दिया है। बड़ा ही दिलकश स्ट्रोक, कोई फील्डर अपनी जगह से नहीं हिला और गेंद सीधे जाकर बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर गिरी 6 रन के लिए। नहायत ही उम्दा स्ट्रोक उवैस अहमद का। इस छक्के के साथ उवैस पहुंचे 25 रन पर, जबकि वसीम काचरू नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर 50 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। क्या जबरदस्त आगाज फराहम किया है इन दो बल्लेबाजों ने। एक बार फिर इस गेंद को उठा दिया है, गेंद जाएगी स्टेडियम से बाहर 6 रन के लिए। एक और छक्का यहाँ पर देखने को मिला और ये पटाखा बिल्कुल मैदान के बीचों बीच सर किया गया। इस छक्के के साथ मजमू स्कोर 86 रन बगैर किसी नुकसान के। जबरदस्त खेल इस वक्त होता हुआ और मुझे ज्वाइन किया हमारे सीनियर साथी कमेंटेटर आगा प्रिंस ने। अगली गेंद अच्छी गेंद थी, बीट हुए, स्टंपिंग की अपील कर रहे हैं, नॉट आउट करार दिया गया वहां पर अंपायर की जानिब से। तो बाल बचे वहां पर और 86 रन 6वें ओवर में, 86 रन बगैर किसी नुकसान के। वसीम काचरू 50 रन पर, जबकि उवैस अहमद 31 रन पर बैटिंग करते हुए। क्या खूबसूरत माहौल, क्या दिलचस्प माहौल बांडीपुर के शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम में, जहां पर यह मुकाबला इस वक्त जारी है और अपर हैंड है इस वक्त सुल्तान वेरियर्स बारामूला की टीम का, क्योंकि उन्होंने कोई विकेट अब तक नहीं गंवाया। एक बार फिर आकिब आए, गेंद की, इस गेंद को उठा दिया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर और गेंद ने बाउंड्री लाइन पार की 4 रन के लिए। एक और चौका। क्या दिलकश बैटिंग हो रही है इन दो बल्लेबाजों की जानिब से। 90 रन बगैर किसी नुकसान के 6वें ओवर में, 6वें ओवर में 90 रन बगैर किसी नुकसान के। दिलकश बैटिंग, यादगार बैटिंग हो रही है आज बांडीपुर के शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम में। तमाशाई सराहते हुए इस बैटिंग को। गेंद करने के लिए दूसरी जानिब फील्ड तरतीब देने में मशगूल और क्या लाजवाब इनिंग्स खेली इन दो बल्लेबाजों ने। उवैस अहमद 35 रन पर, जबकि वसीम काचू 50 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। आए आकिब, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की, उठा दिया है, गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं और ये क्या
कैच लेने में बिलाकिर कामयाब हुए और पहली विकेट यहां पर गिरती हुई। पहला नुकसान यहां पर उठाना पड़ा सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम को। तो विकेट दिलाने में कामयाब हुए यहां पर आकिब अपनी टीम को। छठे ओवर का खेल जारी है, 90 रन 1 विकेट के नुकसान पर 213 रन का पीछा करते हुए। और हमारे साथ जुड़े हमारे सीनियर कमेंटेटर आगा प्रिंस, अब माइक उनके हवाले। So Sultan Warriors Baramulla, they are at driver's seat. 90 for the loss of 1 wicket at the end of 6 overs. What a great batting by Umesh Ahmed. He was brilliant. He stole the show and finally he's back in the pavilion. Now one more batter. Adil Wani has joined the crease with Wasim Katru. Wicketkeeper standing behind the stumps there. From the far end, it's Roof Mir, probably. Roof. This time, oh, guided it, but straight finds the fielder there. What a great innings by Uwais Ahmed. What a start he has given to the Sultans. And they have he has set the tune for Sultans. Katru getting ready now. This time, that's a good connection. Oh, it's going safe into the hands. And this is one more wicket down for Sultans. He was trying to clear the boundary line, but finds the fieldsman there. Second wicket goes down. And this is the big man. Wasim Katru has gone. Roof Mir has done the work. This is the second wicket down now for Sultan Warriors. And Sikai Stars, Budgams, they are coming back into the match. It was going out of the hands of Budgam, but by picking the 2 wickets very quickly has brought them back into the game. Stadium be buzzing at the moment in the heart of the Bandipora. Tremendous conditions. The atmosphere is electric. And what a game going on. What a game going on. This is grand finale of Bandipora Premier League. And now new batter Adil Wani is walking. Wasim Katru is being applauded there in the dugout. 50 runs for him of 20 deliveries with 5 sixes and 4 boundaries. He was electric, and now one more batter is coming to join. Adil Wani. Fine leg is open for the batter. There is third man as well. Short backward point. There is short point.
cover at the boundary line. Danish Muzaffar is the new batter, and he is on strike. Now both the batters, Danish Muzaffar and Adil Wani, they are new to crease. They will consume time because the stage is set for them. 90 runs already on the board, and this is over number 7, fourth delivery. Here is Roopmeer. Comes in, ball this time on the back foot, turns it towards the scale leg region. Fieldsman gets the ball, throws back in between, a single added to the tally of Sultan Warriors. 91, 2 wickets down, 2 balls still to go from this over. This over has been brilliant for Sky Stars. A wicket and only a single conceded so far. 2 balls to go. 4 balls have been bowled from this over. Roof once again coming in. This time once again turns it, going very fast. My batsman was trying to come back, but once he saw the ball is right into the hands of the fieldsman, changed his idea to go for the second, and it's 92 for the loss of 2 wickets. Last delivery to go. Danish this time opens the pace. Oh, what a great piece of fielding in the slip cordon. The ball was going towards the boundary, but the effort resulted, saved the boundary, and that marks the end of over number 7. 93 for 2. Remember, the target for Sultans is 213. It's a big ask for them, but the way openers set the tune has made this chase a bit easier for Sultan Warriors. But unless and until the last ball is bowled, we can not come to the conclusion. This time Sultans are a bit higher by taking the 2 wickets. Sky Stars Budgam, they are back in the game. Danish Muzaffar 2 and Adil Wani single so far. Akif has been brought now to bowl this over number 8. Here is first ball of the over. This time batsman plays it all along the carpet towards the long on area. Fieldsman there gets the ball, only a single. Once again. This time the batter coming in the line, pushes it. Ball goes once again towards the offside at field is at long off. In the meantime, single added to the tally of Sultan Warriors Baramulla. 95 for 2. 2 balls have been bowled from this over. 2 runs conceded. Third one. This time once again turns it toward the onside. He has to hurry, and a single resulted, taking the tally of Sultan Warriors to 96. 3 balls have been bowled, 3 to go, 3 runs conceded. 3 balls, how much they can draw from the last 3 deliveries of this over. This time, steers it, and it goes all the way for 4 runs. The batsman saw the ball is going a bit away from him, and he just steers it, and the ball does the rest. It goes very fast over the boundary line for 4. Akif this time on the back foot, pushes it, but bowler himself goes, gets the ball, and there is no chance for the batters to go across. 100 is up for Sultan Warriors Baramulla, and this is going to be the last delivery of 8th over.
Akif. This time, oh, that's a good shot, but fieldsman at the deep, and the batsman is trying for the second, and he has made it. What a great running between the wicket. 102 at the end of over number 8. टॉस जीतकर आज स्काई स्टार्स बडगाम ने फैसला किया कि वो पहले बल्लेबाजी करे, और आज क्या शानदार बल्लेबाजी हुई है स्काई स्टार्स बडगाम की जानिब से। 213 रन्स का टारगेट रखा है सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला ने भी बहुत ही अच्छी शुरुआत की, शानदार शुरुआत की, और उसके बाद लगभग 90 रन्स के बाद पहली और दूसरी विकेट गिरी। अब दोनों बल्लेबाज आदिल वानी और दानिश मुजफ्फर बारी को संभाल रहे हैं, और देखना होगा अब किसको बुलाया जा रहा है। जावेद जुड्डू को अब बुलाया जा रहा है। स्काई स्टार्स बडगाम चाहेगी यहां पे एक और विकेट निकले, ताकि जिस तरीके से सुल्तान वॉरियर्स आगे निकल गई है उस पर थोड़ा सा रोक लगे। दानिश मुजफ्फर स्ट्राइक पे रहेंगे, विकेटों के पीछे विकेट कीपर बहुत नजदीक बैठे हैं। जावेद जुड्डू आए बाएं हाथ से, ये गेंद इस बार गेंद को कट कर दिया है, लेकिन गेंद सीधे फील्डर की जानिब जो कि बाउंड्री लाइन पे तैनात थे। इस बीच 1 रन का इजाफा, 1 रन के साथ मजबूरी स्कोर सुल्तान वॉरियर्स का बढ़ता हुआ 103। 2 खिलाड़ी आउट हुए। दूसरी गेंद इस ओवर की, जड्डू आए, उनके सामने हैं आदिल, इस बार जबरदस्त अपील और आउट। कॉट बिहाइंड हुए, यहां पे तीसरी विकेट निकालने में कामयाब रहे, और कोशिश करेंगे हम यहां पे देखें कि, लेकिन थोड़ा सा लेट हुआ है कि हम रिप्ले देख नहीं पाए। तो इस तरह से तीसरा झटका लगता हुआ सुल्तान वॉरियर्स बारामूला को 103, 3 खिलाड़ी आउट। आदिल वानी 8 रन्स बनाने के बाद वापस चले गए। उनका कैच विकेट कीपर आसिफ रमजान ने लिया, और ये विकेट जावेद जुड्डू के खाते में गई है। जावेद जुड्डू का ये तीसरा ओवर, अब तक उन्होंने 2.2 ओवर्स में 30 रन्स दिए और 1 विकेट उनके नाम गई। अब इस मैच का रुख थोड़ा सा बदला है, देखना होगा सुल्तान वॉरियर्स इस गेम में किस तरह से वापस आती है। बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं लाइनअप में, लेकिन बड़ी टीम है और बड़ा मैच है, और जब आप फाइनल खेल रहे हो तो आपके ऊपर एक अलग सा दबाव भी रहता है।
103, 3 खिलाड़ी आउट। और अब देखना होगा कौन बल्लेबाज आए हैं, उनका नाम डिस्प्ले नो मैन होता है। तो नए खिलाड़ी आए हैं और उनका नाम क्या है, यहाँ पे नो मैन है तो हम फिलहाल नो मैन ही पढ़ेंगे जब तक हम कंफर्म करें इसका नाम क्या है। नए बल्लेबाज के लिए अगली गेंद। इस बार गेंद को ऑन साइड की तरफ मोड़ दिया और रन के लिए दौड़ पड़े बैट्समैन। 1 रन का इजाफा। इस 1 रन के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 104, जबकि 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। दानिश मुजफ्फर ने 5 रन बना रखे हैं। अगली गेंद। इस बीच इस बार गेंद को टैप कर दिया था। चाहते थे कि यहां पे एक रन निकले, लेकिन अच्छी फील्डिंग, फील्डर तैनात थे। जावेद जिद्दू एक बार फिर आए गेंद की। ओ बहुत ही शानदार गेंद। दानिश तैयार हो रहे हैं। विकेटों के पीछे विकेट कीपर बहुत ही नजदीक बैठे हैं। जावेद आए, ये गेंद की लाइन में आकर गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड की ओर। वहां पे फील्डर मौजूद, हल्के कदमों के साथ 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 106 मजमूई स्कोर। 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। थोड़ा सा प्रेशर इस वक्त सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के ऊपर, क्योंकि उन्होंने 3 विकेट्स जल्दी यहाँ पे गंवाई हैं और उसकी भरपाई करने के लिए दोनों बल्लेबाज दानिश मुजफ्फर और एक और बल्लेबाज जिनका नाम हमें मालूम नहीं है, उसकी भरपाई करनी होगी। और इस माइंडसेट के साथ दोनों बल्लेबाज खेलने आए हैं। क्या कुछ उस तरह की बारी वो खेल पाएंगे जिस तरह से यहाँ पे सुल्तान वॉरियर्स आगे निकलने में कामयाब रहती है। दसवां ओवर शुरू होने जा रहा है और आकिब को बुलाया गया है बॉलिंग के लिए। इस बार आकिब तैयार हो रहे हैं, उनके सामने हैं बल्लेबाज और बहुत ही शानदार खेले हैं, बहुत ही शानदार। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। आप स्टंप पे बॉल को उठाया और फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। ये होती है क्वालिटी और यही वजह है उन्होंने अपना नाम शो नहीं किया है। मंजे हुए खिलाड़ी हैं और अपना काम जानते हैं। एक बार फिर तैयार बल्लेबाज। इस बार अच्छी गेंद की लाइन में आकर गेंद को खेल दिया। गेंद गई सीधे है लॉन्ग ऑफ की ओर। वहां पे थोड़ा सा फंबल और इसका नतीजा ये कि 2 रन सीधे सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के स्कोर में। बहुत ही शानदार रनिंग वहां पे। 112 मजमूई स्कोर। 3 खिलाड़ी आउट। 8 रन पे पहुंचे हैं नो मैन, जिन्होंने 4 गेंदें अब तक खेली हैं। उनके साथ दानिश मुजफ्फर ने 6 रन 8 गेंदों में हासिल किए हैं। अगली गेंद इस बार लेग स्टंप पे गेंद थी, गेंद को निकाल दिया है। फील्डर गेंद के पीछे, क्या गेंद को रोक पाएंगे? और वहां पे एक और फील्डर आए, गेंद को फील्ड किया। इस बीच 2 रन का इजाफा। इन 2 रन के साथ मजमूई स्कोर सुल्तान वॉरियर्स का बढ़ता हुआ 114। 3 खिलाड़ी आउट हुए। अभी भी इस ओवर से 3 गेंदें आनी है। 8 रन
आ चुके हैं पहले 3 गेंदों में। इस बीच एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर में। अच्छी गेंद थी, आप स्टंप पे थी, बल्ले का मुंह खोला और जल्दी दौड़ पड़े। एक 115, 3 खिलाड़ी आउट। वाजिया रहे 213 रन का टारगेट मिला है सुल्तान वॉरियर्स को। एक बार फिर अच्छी गेंद की लाइन में एक बार फिर आए, वापस बॉलर की जानिब खेला, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। अपनी बारी को, इस इनिंग्स को बिल्ड कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। इस बार ऑफ स्टंप पे गेंद थी, ऑन साइड की तरफ खेला, लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद, गेंद को फील्ड किया। तब तक बैट्समैन के पास 1 रन बनाने का मौका। 1 रन के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ सुल्तान वॉरियर्स बारामूला का 116, जबकि 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। टॉस जीतकर स्काई स्टार्स बडगाम ने आज पहले बैटिंग की और एक अच्छी बैटिंग की और 213 रन का टारगेट दिया सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए। और अगर देखा जाए आज सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम में जोलू भी नहीं है और आसिम बशीर भी नहीं है, और उसका इम्पैक्ट रहता है कि नहीं ये आने वाला वक्त ही बोलेगा। तो इस तरह से 10 ओवर्स के इख्तिताम पर 116, 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। अभी ये मैच कहीं नहीं गया है, बीच में फंसा है और देखना होगा यहाँ से अगर एक और विकेट या 2 विकेट स्काई स्टार्स निकालने में कामयाब रहती है तो लगता है कि उनके साइड ये मैच रहेगा। लेकिन अभी भी डटे हुए हैं, दानिश मुजफ्फर हैं और उनके साथ एक और बल्लेबाज हैं जिनके पास वो तजुर्बा है, जिनके पास वो टेक्निक है कि वो बारी को आगे ले जाने में कामयाब रहेंगे। फिलहाल तैयार है जावेद जड्डू, एक बार फिर उनके सामने हैं दानिश। जड्डू आए दानिश के लिए, ये गेंद, इस बार गेंद को उठा दिया है और गेंद गई है फाइल लेग बाउंड्री लाइन की तरफ। फील्डर गेंद के पीछे, क्या वो गेंद को रोक पाएंगे? लेकिन गेंद को रोकने में नाकाम और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही जबरदस्त कोशिश की थी वहां पे खिलाड़ी ने, लेकिन बस 2 इंचेस की फर्क रही। इन चौके की मदद से मजबूत स्कोर सुल्तान वॉरियर्स का बढ़ता हुआ 120, 3 खिलाड़ी आउट। दोनों बल्लेबाज जाराना खेल रहे हैं, जानते हैं कि अगर छक्का लगाएंगे तो कहीं कैच तो नहीं होगा कहीं, और यहाँ पे गैप्स को ढूंढते हैं और अब तक बिल्कुल कामयाब रहे हैं दोनों बल्लेबाज। जड्डू एक बार फिर तैयार दानिश के लिए। दानिश इस बार बल्ले का मुंह खोला और वहां पे फील्डर मौजूद थोड़ा सा पीछे थे, लेकिन इसका फायदा दोनों बल्लेबाजों ने लिया। 1 रन जुड़ता हुआ मजमूई स्कोर में सुल्तान वॉरियर्स बारामूला 121, 3 खिलाड़ी आउट। जहां तक पिच की अगर हम बात करें, ये फ्लैट है और इसको बोलते हैं बैटिंग पैराडाइज, और यहाँ पे अगर आपके पास वो टेक्निक है और बैटिंग की वो लगन है तो आप बहुत कुछ यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। जड्डू एक बार फिर बल्लेबाज उनके सामने, विकेट के पीछे विकेट कीपर। इस बार अच्छी गेंद को निकाल दिया, लेकिन दायरे के ऊपर मौजूद खिलाड़ी उन्होंने गेंद को फील्ड किया, किसी रन का इजाफा नहीं। अगली गेंद जड्डू आए गेंद की, इस बार अच्छी गेंद थी, वापस बॉलर की जानिब खेलने में कामयाब बल्लेबाज।
और इसके साथ ही एक और ओवर मुकम्मल होता हुआ 11 ओवर्स के बाद स्कोर 121, 3 खिलाड़ी आउट। क्या कुछ होगा इस खेल का। बड़ा टारगेट मिला है सुल्तान वॉरियर्स बारामूला को, 213 रन्स का टारगेट मिला है सुल्तान वॉरियर्स बारामूला को। और जो स्टार्ट मिला था सुल्तान वॉरियर्स को वो बहुत ही शानदार, लगभग 6 ओवर्स में उन्होंने 90 रन स्कोर किए थे, लेकिन उसके बाद जल्दी से 3 विकेट्स उन्होंने खोई, जिसकी वजह से जो आने वाले बैटर्स थे उनके ऊपर प्रेशर रहा और अभी भी टीम प्रेशर में झेल रही है। .92 runs still needed of 54 balls to be the champions of Bandipora Premier League. They need to go very fast if they want to go over the line, if they want to be the champions of Bandipora Premier League. As so far the present situation is concerned, I think they are consolidating. They are getting their eyes on the ball, and within hours they will definitely change the gears. Now Yasir Kulgami starting his bowling journey in the grand finale. Yasir running away down the track, oh, misses it. What a wonderful delivery from Yasir Kulgami. Danish Muzaffar was charging him, and let's see what will be the result of the second delivery. You know, they need to go very fast. They have to change the gears. They need more than 90 runs from more than 50 deliveries this time. Oh, fieldsman failed, and ball crosses the boundary line for 4 runs. The batsman making use of the pace of Yasir Kulgami, and what a shot that was, racing away like a bullet there. $125
125 for 3. Yasir once again getting ready. Comes in. This time once again opens the face of the bat. Ball finds the fieldsman there. But in between a single deposited to the tally of Sultan Warriors Baramulla. And they are now 126 for 3. Remember, this is over number 12 in progress. 3 balls have been bowled, 5 runs conceded, and still 3 balls to go. Definitely aiming to have a big shot from these last 3 deliveries. No man there. 11 runs for him of 9 deliveries. Getting ready. Yasir Kulgami comes in. Oh, that's a wonderful delivery. Look at the pace of the ball and look at the line and length from Yasir Kulgami. Yasir once again. Oh, this time batsman on the back foot pushes it. The ball still goes towards the onside, towards the long on region. A single added to the tally, and score moves on to 127 for the loss of 3 wickets. Danish with the high back lift. Yasir Kulgami is having long run up. Oh, that's a huge cheeky. Where it goes, fine leg fielder in business, and couple of runs there. Unorthodox shot from the batter. Although he missed the shot, it was bound to go over the line, but he's being applauded for his effort. So after 12 overs, 1-9 for the loss of 3 wickets. .84 runs still needed for Sultans of 48 balls. Tough ask for them. In the meantime, one more boundary for the batter. Misfield there by Saqib Pandya. And every boundary, if you misfield, it will be a plus point for Sultan Warriors. Next delivery. Oh, that's a good correction. Where it goes out of the line. It's a biggie. What a shot. That was travelling very high and far, and it goes into the stands, and the tally moves on to 139 for the loss of 3. No man has reached to 22 of 13, and then on the other side Danish Muzaffar 19 of 17. Here is Samir Bell getting ready, wicketkeeper very close. Samir Bell comes in. This time that's a good connection.
One run has been taken. The batsman is trying to go for the second, but he saw the ball is well in the hands of the fielder. Changed his decision to go for the second one. And now it's 140 up for the loss of 3 wickets. This is over number 13 in progress. Still 3 balls to go from this over. 1 boundary, 1 six and a single so far from the last 3 deliveries. 3 balls to go. How much they can draw from these 3 balls? Danish, he's very eagerly waiting to get one more maximum here, but this was a decent delivery. Just turns it towards the onside. That brings the other batter on strike. 72 needed. 44 balls to go. 23 for Noman and Danish Muzaffar. 20 of 18 deliveries. A good partnership going on between these 2 guns, and they know their value. That's why they are taking care of everything. Next delivery. This time, oh, that's a glorious shot. That goes all along the carpet, over the backward point region for 4. What a shot that was. What a shot that was. And with this boundary, Sultan Warriors Baramulla, they are 145 for 3. Still 68 runs. Sultan needs 68 runs. 43 balls to this time. Turns it towards the onside. Fielder coming from the boundary line. So it's 146 for the loss of 3 wickets. Bilal Hakim is with me in the calm box. Now Fevers over to him. 146 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 13 ओवर की समाप्ति के बाद दानिश 18 में 20 और नोनेम 16 में 28 रन बनाकर नवादा। समीर बेल अपने 3 ओवर्स में 50 रन मुकम्मल करते हुए आज काफी ज्यादा महंगे साबित हुए थे और पावर प्ले में उनको गेंदबाजी कराई गई थी और उस डिसीजन की मैं अगर बात करूं तो काफी खराब वो डिसीजन। 2 ओवर्स में ऑलमोस्ट 30 रन खर्च किए थे उन पावर प्ले के 2 ओवर्स में। कुलगामी को अब गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया गया। 7 ओवर्स का खेल बचा है। एक अच्छा मुकाबला यहाँ पे, कांटेदार मुकाबला यहाँ पे। पहली गेंद ड्राइव खूबसूरती के साथ गेंद जाएगी बैकवर्ड पॉइंट बोलने से बाहर। एक और चौके के लिए एक और चौका यहाँ पे नो नेम के बल्ले से निकलता हुआ। 150 अभी भी 63 रन दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। 150 का आंकड़ा छूती हुई यहाँ पे टीम सुल्तान वॉरियर्स बारामूला। 3 विकेटें जल्दी गवाई थी, लेकिन उसके बाद अच्छा बैकअप यहाँ पे, अच्छी वापसी यहाँ पे। दानिश मुजफ्फर और नो नेम जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे। कुलगामी पिछले मुकाबले में सेमीफाइनल में गेंदबाजी नहीं की थी और आज यहाँ पे मौका दिया गया है। अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे, 12 रन खर्च किया है अभी तक यासिर कुलगामी ने। क्या 1 या 2 विकेट यहाँ पे अगर लेने में कामयाब होती है टीम के स्टार बड़गाम, इस मुकाबले में वापसी कर सकती है। इस ओवर की अगली गेंद कुलगामी लंबे रनअप के साथ चले। गेंद पैड्स पे खूबसूरती के साथ इस गेंद को मिड विकेट की ओर धकेला। 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। 1 और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में 151 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। उसके बाद 6 ओवर्स का खेल आना बाकी है। ये 2 बल्लेबाज इस मुकाबले को दूर ले जाते हुए स्टार बड़गाम से। अब रिक्वायर्ड रन रेट 9 की औसत से यहाँ पे आपको रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस ओवर की अगली गेंद कुलगामी चले। गेंद पैड्स पे एक और गेंद हल्के हाथ से इस गेंद को धकेला। जानते हैं पहली गेंद पे चौका। एक कैलकुलेटिव रिस्क यहाँ पे लेते हुए सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम, उनके जो बल्लेबाज हैं और इस कैलकुलेशन के साथ बल्लेबाजी करते हुए तो 10 के औसत से रन चाहिए तो मुश्किल होती है नहीं। यहाँ पे T20 गेम ऐसी है, आपको मुश्किल होती नहीं। अगर आप 10 के औसत से रन बनाने, आखिरी 5 ओवर्स में आपको रन 10 के औसत से रन बनाने होंगे
विकेट्स इन हैंड आप एक्सलेट कर सकते हैं। नो नेम सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। यासिर चले कोर के इन पैड्स पे, इस गेंद को हल्का से दिशा दी, खिलाड़ी वहां पे तैनात, हल्का सा फंबल होता हुआ 1 ही रन मिल पाएगा। जावेद जड्डू वहां पे मौजूद, स्कोर बढ़ता हुआ इस 1 रन के साथ 50 रन की पार्टनरशिप मुकम्मल होती हुई 153 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। ये 2 खिलाड़ी इस मुकाबले को दूर ले जाते हुए टीम स्काई स्टार बडगाम से एक अच्छी पार्टनरशिप है 50 रन की। 100 पे 3 खिलाड़ी जल्दी गंवाए थे और उसके बाद अच्छी वापसी यहाँ पे और रिबिल्ड करते हुए इस इनिंग्स को एक अच्छा हदफ मिला था, एक बड़ा हदफ मिला था, लेकिन अभी तक का पूरी तरह से कंफर्टेबल लगी है सुल्तान वॉरियर्स बारामूला। 153 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। कोलगामी इस ओवर की अगली गेंद अपने कोटे का दूसरा ओवर करें, अभी तक का 15 रन खारिज किया है। गेंद आगे आकर इस गेंद को हवा में खेला, खिलाड़ी वहां पे तैनात, 1 ही रन मिल पाएगा। गुलजार गुली वहां पे मौजूद, जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता, 1 और रन जुड़ता हुआ स्कोरबोर्ड में। स्कोर बढ़ता हुआ इस 1 रन के साथ 154 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। इनिंग का ये 14वां ओवर जारी, उसके बाद 6 ओवर 36 गेंदों का खेल बचा। ये मुकाबला अंत तक जाने वाला है, अगर यहां पे विकेट मिलती है मुकाबला अंत तक जाएगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि अच्छा मुकाबला है। गेंद एक और चौका यहां पे मिलता हुआ, क्या खूबसूरती के साथ इस गेंद को गैप पे धकेलते हुए समीर बेल के पास कोई भी मौका ना बना वहां पे। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 158। कोलगामी का ये ओवर इख्तिताम होता हुआ 10 रन आए इस ओवर से, 158 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। 14 ओवर समाप्त होते हुए अभी भी 36 गेंदों में 55 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इक्वेशन 36 गेंदें 55 रन दरकार इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। और नई चैंपियंस इस साल कौन रहेगी, कौन सी टीम इस साल यहाँ पे चैंपियंस बांडीपोरा प्रीमियर लीग क्या इस साल बनने वाले हैं। फिलहाल पिछले साल की मैं अगर बात करूं तो रॉयल गुडविल इस चैंपियनशिप को अपने नाम करने में कामयाब हुए थे, लेकिन इस साल जो पिछले साल की दोनों फाइनलिस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे वो नॉकआउट हुई थी। नॉकआउट बेस्ड मुकाबलों में, लीग बेस्ड मुकाबलों में ही नॉकआउट किए गए थे दोनों फाइनलिस्ट पिछले साल के। इस साल नई जो 2 टीमें हैं, दोनों टीमें डिजर्विंग जिस तरह से खेल पेश किया है इस बांडीपोरा प्रीमियर लीग में सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम ने, और साथ साथ स्काई स्टार बडगाम की टीम अनबीटन रही है, कोई भी मुकाबला इस श्रृंखला में हारी नहीं है। 158 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 14 ओवर की समाप्ति के बाद इन्होंने यहाँ पे 20 गेंदों का सामना किया, 38 रन बनाकर नाबाद। वही दानिश मुजफ्फर ने 20 गेंदों का सामना किया, 22 रन बनाकर नाबाद किए रहे। शबीर लेफ्टी को आप गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया गया है। शबीर लेफ्टी यहाँ पे अपने कोटे का पहला ओवर करने जा रहे। आज बल्लेबाजी काफी बेहतरीन की थी और गेंदबाजी में क्या कुछ कर पाएंगे शबीर लेफ्टी, क्या विकेट दिला सकते हैं अपनी टीम को। यहाँ पे फील्ड एडजस्ट करते हुए, अपनी गेंदबाजी के लिए यहाँ पे फील्ड एडजस्ट करते हुए एक मिस को एक हाफ चांस, आपको हर एक हाफ चांस लेना पड़ेगा इस मुकाबले में वापसी करने के लिए। लेफ्टी छोटे से रनअप के साथ लेफ्टी लेग साइड की फील्ड यहाँ पे वो बेहतर करते हुए एक स्क्वायर के क्षेत्र में, एक मिड विकेट के क्षेत्र में काट खूबसूरती के साथ रन आउट होने का खतरा। वहां पे कमाल की फील्डिंग आके बके द्वारा वहां पे 4 रन रोके अपनी टीम के लिए। स्कोर बदस्तूर 158 3 खिलाड़ी के नुकसान पे मुकाबला अंत तक जाने वाला है। इस मुकाबले में फिलहाल गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और गुलजार गुल्ली वहां पे एक ऐसा खिलाड़ी है, एक ऐसा नाम है, सेफेस्ट प्लेयर अगर पूरे कश्मीर की मैं बात करूं, इससे बेहतर फील्डर आपको नहीं मिलेगा पूरे कश्मीर में। नाम इसका गुलजार गुली, और क्या खूबसूरत कैच वहां पे, क्या बेहतरीन कैच लेते हुए गेंद ट्रेवल कर रही थी, लगा था कि गेंद 6 रन के लिए जाएगी, लेकिन गुलजार गुली वहां पे तैनात और एक बेहतरीन कैच लेते हुए चौथा झटका, एक विकेट की दरकार थी, विकेट दिलाते हुए शबीर लेफ्टी द गो टू मैन स्काई स्टार बडगाम के। जब भी टीम को जरूरत होती है शबीर लेफ्टी खड़े होते हैं और
आज बल्लेबाजी भी कमाल की थी और कमाल की थी आज गेंदबाजी में पहली गेंद पे विकेट दिलाते हुए वापस भेजते हुए इस पार्टनरशिप को तोड़ना काफी जरूरी हो गया था। यहाँ पे ये मुकाबला काफी दूर जा रहा था सिटी स्टार बडगाम से और ये विकेट इस मुकाबले में आपको थोड़ी सी वो इस मुकाबले में वो थोड़ी सी उम्मीद आप इस मुकाबले में वापसी कर सकते हैं। फिलहाल स्कोर 158 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। नए जो बल्लेबाज अब आए हैं, अब आपके पास ज्यादा गेंदें हैं नहीं, 34 गेंदें 55 रन तो यहाँ पे अब खेलना होगा। अब वहां से आके अब जो भी बल्लेबाज आए, शायद टीम के कप्तान नदीम डार आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, सरपंच साहब को भेजा गया है। नदीम डार यहाँ पे गेंदबाजी आज खास कुछ कर नहीं पाए। अब बल्लेबाजी में आप से उम्मीदें रहेंगी। यहाँ पे टीम के कप्तान है, अब यहाँ पे आपको इस मुकाबले को अपने नाम, इस मुकाबले को जीतना, अगर इस मुकाबले को जीतना है तो नदीम डार को यहाँ पे खेलना पड़ेगा। नदीम डार को यहाँ पे अब एक करिश्माई पारी खेलनी होगी अपनी टीम के लिए। 158 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। आपको बताता चलो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था, बांडीपोरा क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से ऑर्गेनाइज किया गया था। स्पॉन्सर एसेटिक कैश की जानिब से पूरे टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया गया। पिछले 5 सालों से काफी बेहतर काम कर रहे हैं एसेटिक कैश की मैं अगर बात करूं हर एक इवेंट में। फिलहाल गेंद जाएंगे वापस, वहां पे सरपंच साहब वापस जाते हुए बिना खाता खोले। टीम के कप्तान आज दिन नहीं रहा था गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में आके यहाँ पे पहली गेंद पे वापस जाते हुए आधी टीम वापस जाती हुई और टीम के कप्तान नदीम डार बिना खाता खोले वापस पवेलियन की ओर जाते हुए और कमाल की ये गेंद शबीर लेफ्टी क्या बेहतरीन गेंद है। एक खिलाड़ी कहां पे रखा था अभी तक, इस खिलाड़ी को आपने क्यों गेंदबाजी नहीं दी थी? एक खिलाड़ी इंपैक्टफुल खिलाड़ी है और इंपैक्ट है यहाँ पे डालते हुए अपनी गेंदबाजी से। क्या ये बेहतर गेंद थी, पढ़कर थोड़ी सी नीचे रहती हुई 3 स्टंप्स के सामने पाए गए और निराश कदमों के साथ वापस जाते हुए टीम के कप्तान नदीम डार बिना खाता खोले 158 5 खिलाड़ी के नुकसान पे मुकाबला जीवित होता हुआ। ये फाइनल मुकाबला है और प्रेशर रहता है फाइनल मुकाबले में और इस बड़ी चीज में आप एफोर्ड नहीं कर सकते। 1 या 2 विकेटें यहाँ पे गिरती है और प्रेशर वापस आ जाता है और वापस आता हुआ प्रेशर यहाँ पे सुल्तान वॉरियर्स बारामूला पे। हालांकि एक खिलाड़ी नाबाद नो नेम के तो जो खेल रहे अभी तक अच्छी पारी उनकी जानिब से खेला गया, अभी तक अच्छी बल्लेबाजी उनकी जानिब से की गई। 20 गेंदों का सामना किया है, 38 रन बनाकर नाबाद खेले, लेकिन जो प्रेशर है वह पूरी तरह से वापस सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के ऊपर नदीम भट्ट को भेजा गया है। एक और बल्लेबाज जो बड़ी हिट्स के लिए यहाँ पे जाने जाते हैं और पिछले कुछ मुकाबलों में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। नदीम भट्ट कल के हीरो रहे थे डलगेट में और सिंगल हैंडेडली कल मुकाबला हराए थे सुल्तान वॉरियर्स बारामूला को और आज उन्हीं के साथ खेल एक प्रमुख हिस्सा है। नदीम भट्ट किस तरह से बल्लेबाजी करते देखने वाली बात होगी। शबीर लेफ्टी 2 गेंदों में 2 विकेट यहाँ पे लेने में कामयाब, हैट्रिक गेंद यहाँ पे इस फाइनल मुकाबले में ड्रामा और इस फाइनल मुकाबले में इससे बेहतर सीन्स हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते थे। शबीर लेफ्टी फील्ड से जाते हुए नए बल्लेबाज नदीम भट्ट के लिए स्वर की अगली गेंद नीचे रहती हुई ड्राइव किया, खिलाड़ी वहां पे तायना शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। 1 या 2 गेंदें यहाँ पे 1 या 2 ओवर से डॉट अगर आते हैं वो प्रेशर वापस बिल्ट होगा और आपको बड़े हिट्स चाहिए होंगे। फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद को हल्के हाथ से धकेला, खिलाड़ी वहां पे तायना, जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता थ्रो किया जाए। 1 और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 159 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। इनिंग का ये 15वां ओवर जारी और गेम चेंजिंग ओवर अभी तक का लेफ्टी के द्वारा। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले लेफ्टी, सामना करेंगे नो नेम। गेंद पैड्स पे हल्के हाथ से इस गेंद को धकेला, खिलाड़ी वहां पे तायना, जब तक इस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते। इस ओवर से 2 रन आए और 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए शबीर लेफ्टी। 160 5 खिलाड़ी के नुकसान पे सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम को अभी भी 53 रन चाहिए और 30 गेंदें शेष है। मेरे साथी प्रिंस आगा आपको इस मुकाबले का आंखों देखा हाल अब
माइक अब मैं हैंड ओवर करूंगा प्रिंस आगर। इस मुकाबले का जो आंखों देखा हाल है, इस मुकाबले की सिचुएशन वो आप तक पहुंचाएंगे। बस वो फेरी पूर पे So Sultan Warriors, they have lost half of the team, 5 wickets down. 160, 5 wickets down. Noman has scored 39 runs of 21 balls. He is brilliant at the moment. Nadeem Butt there on the other side. Face 2 balls, single for him so far. Rouf Mir for Noman. Here comes with the long run up, comes in. This time on the back foot, pushes it. Ball goes straight towards the long off region. Fieldsman flays it there, fields the ball, throws back in between, a single added to the tally of Sultan Warriors Baramulla. And it's 1-6-1 for 5 over number 16 in progress. Second delivery, it's Rouf Mir, comes in, balls, this time 1 second. Oh, that's a beautiful delivery, kissing the bat very closely, almost the wicket was taken. What a brilliant delivery there. Nadeem Butt surprising there. Rouf once again, that one pushes it towards the offside, a bit fumble there, single rejected, and the tally of Sultan Warriors moves on to 162, 5 wickets down, 3 balls to go from this over, 3 balls bowled, 2 runs conceded. This is the 4-1. Here is Mir Rouf this time. Oh, once again, just that was a good throw, and the batter, a narrow escape there for the batter. This time, oh, fielder at the ring is beaten, but fielder at the boundary line saves this. 2 more runs there. 2 runs. And the total for Sultan Warriors moving on, 165 for 2. Last delivery to go. That's a good over for Sketch Stars this time. Short third man plays it there. No chance for the batters to get the single. That brings the end of the over. Excellent over from Rouf Mir. What a great over. So 16 overs have been bowled. This is going to be the 17th over. 165 for 5. Nadeem Butt, I beg your pardon, Nadeem Butt and Noman there. Noman has been excellent there. 41 runs of 23 balls. But don't go away. The game is hanging in there like a coin. .24 balls to go. 44 runs needed. 24 balls to go. 165. Sakib Pandya was brilliant today. He stole the show, and that's why you are looking a big target for Sultans. Shabir. This time batsman pushes it, short cover, plays it, but snatched a single there.
single takes the tally of Sultan Warriors to 166 for 5. 17th over in progress. First ball resulted single. Second delivery comes in, and that's a good connection. Fieldsman there. Oh, it goes over the boundary line there. Fumble there by the fieldsman. Four runs added straight to the tally of Sultan Warriors. They are moving forward. 170 for 5. Still 43 runs needed. Earlier it was 48, as I mentioned, 44. 22 balls. Oh, just keeping it wide of the off stump. That's a good delivery. Every dot delivery will be appreciated. Fourth delivery of this over. Here is Shabir, comes in. This time, that's a good shot. It's in there. Might be caught. And it goes all the way for 4 runs. It was in there, but it went through the hands. And boundary added to the tally. It's 174 for 5. 39 runs needed. 20 balls to go. It's Sophie Fayaz with me. Over to him. बहुत बहुत शुक्रिया आगा 174 रन 5 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। बड़ा दिलकश मैच बनता हुआ यहाँ पर, बड़ा इंतहाई अहम मैच बनता हुआ यहाँ पर, और मुकाबला कोई भी टीम जीत सकती है। और यहाँ पर 174 रन सभी बनाए हैं, जबकि 5 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। गेंद करने की तैयारी में शबीर लेफ्टी, उनका सामना करेंगे नदीम भट्ट। आए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद थी, इस गेंद को कट करने गए थे, कामयाब नहीं हुए। आखिरी लम्हे पे अपने दिमाग को चेंज किया और गेंद लुढ़कती हुई गई। बॉलर ने अपनी गेंद पर खुद ही फील्डिंग की, कोई रन नहीं बना। 174 रन 5 खिलाड़ी आउट। नदीम भट्ट 12 रन पर खेल रहे हैं, जबकि नो नेम 42 रन पर खेल रहे हैं। अगली गेंद के लिए आया, गेंद की इस गेंद को खेल दिया, बड़ा ही दिलकश स्ट्रोक, लेकिन गेंद जाएगी सीधे फील्डर के पास। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन बनाया दोनों बैट्समैनों ने। 1 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 175 रन 5 खिलाड़ी आउट। अब कितने गेंदों का खेल बाकी है? मुझे लगता है 18 गेंदों का खेल अभी बाकी है। 18 गेंदों का खेल अभी बाकी है और 38 रन चाहिए यह मुकाबला जीतने के लिए सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम को। एक अच्छा मुकाबला आज यहां पर देखने को मिल रहा है। तमाशाईं की कसीर तादाद मैदान में इस वक्त मौजूद है। तो मिड विकेट कॉन्फ्रेंस यहां पर जारी है स्केच स्टार बडगाम्स के खिलाड़ियों के दरमियान, और एक सबस्टिट्यूट फील्डर इस दौरान मैदान में आया और खिलाड़ी जो बैट्समैन है उनके साथ भी सलाह मशवरा जारी। खेल के इख्तितामी लम्हात, आखिरी 3 ओवर्स आना बाकी है। बगविंदर है हमारे साथ बैट्समैन जिन्होंने अभी तक 42 रन बना रखे हैं। अभी तक हम नो नेम पढ़ रहे थे क्योंकि स्कोर बोर्ड अपडेट नहीं हो रहा था हमारा। बगविंदर हमारे साथ है। हमारे साथ नहीं है बल्कि खेल रहा है। और अब 18 गेंदों का खेल अभी बाकी है और 38 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम को। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और आप लोग शेयर करें, इस आखिरी मोमेंट को शेयर करते रहें ताकि बहुत सारे लोगों तक हमारी ये लाइव नशरियात पहुंचे। 175 रन 5 खिलाड़ी आउट। इनिंग्स का 18वां ओवर शुरू होने जा रहा है। गेंद करने की तैयारी में है यासिर कुलगामी जो कि गेंदबाजी करेंगे
कॉलेज रोड एंड से। उनका सामना करेंगे दाएं हाथ से खेलने वाले नदीम भट्ट, जिन्होंने अब तक 19 रन बना रखे हैं। 13 रन उन्होंने बना रखे हैं। फील्ड तरतीब देने में मशगूल, विकेट कीपर विकेटों के पीछे। थर्ड मैन, पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, यह है ऑफसाइड की फील्ड। ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर, डीप मिड विकेट पर एक फील्डर, डीप फाइंड लेग पर एक फील्डर तैनात किया गया है। शॉर्ट स्क्वायर लेग और डीप फाइंड लेग इस फील्ड के साथ गेंद करेंगे यासिर कुलगामी, तैयार गेंद करने के लिए, और दूसरी जाने बैट्समैन भी तैयार। यासिर कुलगामी, लंबा रनअप उनका, भागते हुए गए, रफ्तार तेज हुई, अंपायर को क्रॉस किया, विकेटों पर पहुंचे, गेंद की, इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए। वहां पर फील्डर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, एक ही रन बन पाएगा। और फील्डर का एक्शन देखिए कि अगर आप दूसरा रन लेने गए तो मैं आपको रन आउट कर दूंगा। तो एक रन के इजाफे के साथ 176 रन, 5 खिलाड़ी आउट। इनिंग्स का ये जब दो ओपनिंग बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए आए, शायद ये मैच 10 ओवर्स में पूरा होगा, लेकिन उसके बाद अच्छी नप्पी तुली बॉलिंग की स्केच स्टार्स बडगाम की टीम ने और मैच में अच्छी वापसी की। इस दौरान यासिर कुलगामी ने भागना शुरू किया, रफ्तार तेज हुई, अंपायर फिरोज को क्रॉस किया, विकेटों पर पहुंचे, गेंद की, इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए, एक रन बना, एक ही रन बन पाएगा क्योंकि वहां पर फील्डर मौजूद थे। एक रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 177 रन, 5 खिलाड़ी आउट। हमारे साथी कमेंटेटर आज रेस्ट पे है, हकीम बिलाल, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं हकीम बिलाल, और आखिरी 2 ओवर्स में हकीम बिलाल आएंगे और ये इनिंग्स का 17वां ओवर इस वक्त जारी है। मजमूई स्कोर 177 रन, 5 खिलाड़ी आउट, और पूरी तरह से मैच में वापसी की यहां पर स्काई स्टार्स बडगाम की टीम ने। इस दौरान यासिर कुलगामी भागते हुए गए, रफ्तार तेज हुई, अंपायर को क्रॉस किया, विकेटों पर पहुंचे, गेंद की, इस गेंद को उठा दिया है, फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं और एक आसान सा कैच लेकर इनिंग्स का खात्मा कर दिया। ये छठा खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन वापस जाता हुआ, और मुझे लगता है कि मैच में अब वापसी की है स्काई स्टार्स बडगाम की टीम ने। छठा खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन वापस, बड़ी कीमती विकेट यहां पर दिलाने में कामयाब हुए यासिर कुलगामी। इट्स ओवर टू आगा। अब खेल के ये आखिरी लम्हा, 14 गेंदें और 36 रन चाहिए सुल्तान वॉरियर्स बारामूला को इस फाइनल को अपने नाम के लिए। 10.02 की औसत से रन्स बना रही है सुल्तान वॉरियर्स, और उन्हें चाहिए 15.5 की औसत से यहां से अगर वो इस मैच को जीतना चाहेंगे। यासिर कुलगामी ने एक विकेट अपने नाम किया है और 2.4 ओवर्स में 22 रन दिए हैं। भगविंदर अभी भी वहां पे खेल रहे हैं और जमे हुए हैं, अच्छी इनिंग्स खेली है, 43 रन बना रखे हैं भगविंदर ने। 26 गेंदों का सामना किया, 5 चौके और 1 छक्का लगाने में अब तक कामयाब रहे हैं। सलमान अब नए बल्लेबाज आए हैं। इनिंग्स का ये 18वां ओवर, अभी भी 2 गेंदें इस ओवर से आनी है। 36 रन की जरूरत, 14 गेंदें अभी भी फेंकनी है स्काई स्टार्स बडगाम को। कांटे का मुकाबला, कहीं दूर मत जाइएगा और जरूर एक बार आप शेयर करें। बिल्कुल, हमने बात की वहां पे तो उन्होंने बोला है कि भगविंदर है, तो हम इसी नाम को अब आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले बल्लेबाज सलमान तैयार हैं। यासिर कुलगामी के हाथ में गेंद रहेगी। अब
इस ओवर में से अब 2 गेंदें आनी है। बहुत ही अच्छा ओवर रहा है, सिर्फ 2 रन आए हैं और 1 विकेट आई है अब तक इस ओवर से। 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार यासिर कुलगामी, दौड़ पड़े, उनके सामने है सलमान। सलमान के लिए एम्पायर को क्रॉस किया, गेंद की इस बार अच्छी गेंद, गेंद की लाइन में आकर गेंद को बड़े शॉट के लिए खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। यासिर कुलगामी, आखिरी गेंद इस ओवर की। सलमान तैयार हैं, दौड़ना शुरू किया, आए गेंद की इस बार बहुत ही अच्छी गेंद और यहां पे बहुत ही खुश। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस आगा। 177 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे टीम स्केस्टार बडगाम इस मुकाबले में क्या खूबसूरत वापसी की है। क्रेडिट जाता है शिबीर लेफ्टी को, क्रेडिट जाता है आसिफ रमजान को और क्रेडिट जाता है रूफ मीर को। हर एक खिलाड़ी अपना 100% देते हुए यासिर कुलगामी प्रेशर में आके इस ओवर को अभी तक का जिस तरह से डिलीवर किया है इस सिचुएशन पे, बड़े खिलाड़ियों की बड़े नामों की निशानी यही होती है। इस ओवर में 2 रन खर्चे, खिलाड़ी को आउट किया। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम इस मुकाबले से दूर जाती हुई। आखिरी 12 गेंदों का खेल आना बाकी, आखिरी 12 गेंदें शेष है। 12 गेंदों में आपको 36 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 12 गेंदें 36 रन, इस लाइव नशरियात को शेयर जरूर करते जाएगा। आखिरी लम्हा तक ये मुकाबला जाने वाला है। बल्लेबाज नो नेम 26 गेंदों का सामना किया है, 43 रन बनाकर। पहली गेंद कमाल की गेंद और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। रूफ मीर यहां पे ये पेनल्टी मेट ओवर करने जा रहे। इस खेमे के सबसे अनुभवी खिलाड़ी है रूफ मीर। फिलहाल ये डॉट गेंद है, हर एक डॉट गेंद के साथ ये मुकाबला काफी दूर जाता हुआ सुल्तान वॉरियर्स बारामूला से। मीर इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले, गेंद पैड्स पे, रन वहां पे नकारते हुए, रन नकारते हुए फील्ड होती हुई आसिफ रमजान से और वो जीत महसूस करती हुई स्केस्टार बडगाम। लग रहा है यहाँ पे इस मुकाबले का पलड़ा जो है वो बारी होता हुआ स्केस्टार बडगाम को क्रेडिट जाता है। जिस तरह की वापसी की है, पहले 6 ओवर्स में ऑलमोस्ट ये मुकाबला उनसे काफी दूर गया था। इस ओवर की अगली गेंद लेकर मीर चले, सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक, गेंद जाएगी एक टप्पे के बाद एक चौके के लिए। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 181, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। अभी भी पहली 3 गेंदों में सिर्फ 4 रन खर्च किए रूफ मीर ने। आखिरी ओवर में अगर 20 से ज्यादा रन होते हैं तो मुश्किल होगा यासिर कुलगामी के खिलाफ वो 3 बड़ी हिट्स लाना। फिलहाल इस ओवर में अभी तक रूफ मीर अच्छी गेंदबाजी करते हुए नो नेम 47 रन बनाकर नाबाद 29 गेंदों का सामना किया है। इक्वेशन 9 में 32 चाहिए, 9 गेंदें 32 रन। नो नेम यहाँ पे 3 रन दूर अपने अर्धशतक से। 181, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे, इस नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन। नो नेम में कौन सा खिलाड़ी ये खेल रहा है? बगमिंदर, अगर बगमिंदर जो इन्फॉर्म किया गया वो लेफ्ट हैंडर है बगमिंदर। फिलहाल 181, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। रूफ मीर इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले, गेंद अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, जड़ में गेंद। एक ही रन मिल पाएगा जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। और एक और रन जुड़ता हुआ इन 21 के रन के साथ खुश रहेगी, संतुष्ट रहेगी यहाँ पे टीम स्केस्टार बडगाम। क्या चैंपियंस यहाँ पे, क्या चैंपियंस की तरह खेला है आज ट्रू चैंपियंस की तरह, ट्रू वॉरियर्स की तरह आज खेला है। जिस तरह से खेल पेश किया है, क्रेडिट जाता है दोनों टीमों को। बाबू पूनिया, ये इंफॉर्मेशन आती हुई कि बाबू पूनिया ये बल्लेबाज जो खेल रहे। मीर इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले सलमान के लिए, गेंद वापस लगती हुई वहां पे बाबू पूनिया वहां पे इंजर्ड होती हुई सीधे उनके हाथ पे लगी थी। काफी तेज ये गेंद गई थी, बिल्कुल भी मौका नहीं मिला उनको, हिलने तक का कोई भी चांस मिला नहीं वहां पे।
बाबू पूनिया इंजर्ड होते हुए 182, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, वहां पे हर एक का खिलाड़ी वहां पे चेक करते हुए, स्काई स्टार बडगाम का हर एक खिलाड़ी उनको चेक करते हुए वहां पे 182, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। अब ये मुकाबला लग रहा है काफी दूर गया है। स्काई स्टार बडगाम जिस तरह से इस मुकाबले में आज खेली है, कमाल का खेल पेश किया। एक समय लग रहा था ये मुकाबला काफी दूर, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जिस तरह से एक ओवर में वो 2 विकेटें गिरी थी शिबीर लेफ्टी के, उसके बाद क्या कमाल की वापसी यासिर कुलगामी की जानिब से, काफी बेहतरीन ओवर। उसके बाद रूफ मीर का ये फॉलो अप का ओवर, काफी बेहतर लाइन पे, काफी बेहतर लेंथ पे गेंदबाजी की है। सटीक यॉर्कर्स यहाँ पे, और इससे बेहतर ऑप्शंस आपके पास एज ए गेंदबाज आप किस तरह से बचते हैं, आप किस तरह से इस टो पे अपने आप को एडजस्ट करते हैं, ये बड़े खिलाड़ी की निशानी। फुल ऑफ रन से यहाँ पे बचना काफी ज्यादा मुश्किल, बल्लेबाजी काफी आसान, और उसके बावजूद भी जिस तरह की गेंदबाजी हुई है। एक 182, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे, और चेक करते हुए यहाँ पे फिजियो चेक करते हुए, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अगले जो बड़े मुकाबले आपको खेलने हैं, कल आपका मुकाबला अथवास 11 के साथ खेलना है, वो कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। 182, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। मुकाबला एक बार फिर रिज्यूम होता हुआ। इस ओवर में अभी तक सिर्फ 5 रन खर्च किए हैं। इस पेनल्टीमेट ओवर में रूफ मीर ने क्या काफी बेहतरीन गेंदबाजी की। गेंद बल्ले के अंदरूनी भाग पे लगे, वहां पे खिलाड़ी साकिब पांड्या, आज दिन रहा है साकिब पांड्या का। दो कैच जो लिए थे साकिब पांड्या ने। आसिफ रमजान वहां पे थोड़ा सा गुस्सा होते हुए, आज जायज नहीं है, मुझे नहीं लगता है इस समय पे ये गुस्सा जायज नहीं है आसिफ रमजान का। आपके आज मैन ऑफ द मैच है ये खिलाड़ी, आज इंपैक्टफुल खिलाड़ी आपका। अभी भी 6 गेंदों में 31 रन चाहिए। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम, आपको 5 छक्के चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। स्काई स्टार बडगाम, और आपके सामने होंगे या